Hello everyone, I am Dr. Sunil Kumar Srivastava. This is the second lecture of beta and gamma function. तो अभी तक जिन लोगों ने भी मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है उसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. So in this video lecture we first of all we have the definition of beta function. The beta function definition is the definite integral given by 0 to 1 integral limit 0 to 1 x to the power of m minus 1 minus x to the power of n minus 1 dx for m positive n positive is denoted as beta of mn, and read as beta of mn is called beta function. So beta of mn is defined by the integral 0 to n x to the power of m minus 1 minus x to the power of n minus n dx for the positive value of mn n, where m and n are integers. Now we have some properties of beta function. From this relation we have beta of mn is equal to, given by the definition is that 0 to 1 x to the power of n minus 1 minus x to the power of n minus 1. This integral can be also be written in the form 0 to 1 minus x to the power of m minus 1 minus x to the power of n minus 1 dx. By the properties of the definite integral, the property is that 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f a minus x dx. तो जब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी को डिफरेंट इंटीग्रल की, तो जो गिवन इंटीग्रल बीटा फंक्शन है ये हमारा इस फॉर्म में राइट कर जाता है. तो हमें क्या मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन? दिस कैन बी रिटन 0 to 1 x to the power of n minus 1 and 1 minus x to the power of m minus 1 dx, and this can be written in the form of beta of nm. So we find here beta of mn is equal to beta of nm, and this shows the symmetry property of beta function. So this shows the symmetry property of beta function. Again दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है by definition of beta function, तो beta of mn is equal to, that is 0 to 1 x to the power of m minus 1 minus x to the power of n minus 1 dx. Let x is equal to sine square theta. This implies that dx is equal to 2 sine theta cos theta d theta. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होगा? लिमिट में क्या होगा? जब x इज इक्वल टू हमारा 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू, एंड थीटा वेरीज फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू, जब x हमारा 0 तो थीटा इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 तो थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई बाई 2. तो ये इन दैट केस वी हैव बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2. x की जगह हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin to the power of 2m minus 2 theta 1 minus x 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta का मतलब cos square theta. दिस कर लो cos square 2n minus 2 बाहर ले लेंगे यहाँ से, और dx की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 sin theta cos theta और d theta. ये हमारी वैल्यू हो जाएगी d theta की. उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1 थीटा d थीटा, एंड दिस गिव द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ mn. So this is also one other form of the beta function given in the form of beta of mn is equal to 2 times of 0 to pi by 2 sine to the power of 2m minus 1 theta and cos to the power of 2n minus 1 theta d theta.
Now again we have another important result of related to beta function, and that result is that 0 to infinite y to the power of m minus 1 upon 1 plus y to the power of m plus n is equal to 0 to infinite y to the power of n minus 1 upon 1 plus y to the power of m plus n is equal to beta of mn। तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन क्या हमारा है, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू है, दैट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 x to the power of m minus 1 minus x to the power of n minus 1 dx for m पॉजिटिव एंड n पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू अगर हमने यूज कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स की वैल्यू -1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। लिमिट क्या होगा चेंज, अगर एक्स इज इक्वल टू हमारा जब 0 होगा तो वाई टेंस टू इनफाइनाइट, और एक्स इज इक्वल टू जब 1 होगा तो वाई टेंस टू 0। तो एंड लिमिट ऑफ y इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू y इज इक्वल टू 0, लिमिट ऑफ दिस इज द लिमिट ऑफ y। तो दो गिवन इंटीग्रल जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ दैट इज बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट टू 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/1 प्लस वाई टू द पावर ऑफ m माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस वाई टू द पावर ऑफ n माइनस 1, और डी वाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई, चूँकि माइनस साइन है तो डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से साइन को चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0 to इनफाइनाइट, माइनस साइन होने की वजह से ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वाई -1 का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वाई टू दी पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन, और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई टू दी पावर ऑफ m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 और प्लस ऑफ 2 डी वाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 0 to इनफाइनाइट y टू दी पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू दी पावर ऑफ m प्लस n डी वाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ एम एन। क्योंकि बीटा और गामा फंक्शन जो होते क्या है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो वी कैन आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ 0 to इनफाइनाइट y टू दी पावर ऑफ m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू दी पावर ऑफ m प्लस n। तो यहाँ से हमें सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से हमें मिल जाएगा दैट इम्प्लाइज दैट बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट y टू दी पावर ऑफ m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू दी पावर ऑफ m plus n dy। So this is the most important property of the beta function which can be used to find the relation of that y. Now we prove here relation between beta and gamma function. Now we have the relation, we have to prove what is the relation between the beta function and gamma function। तो बीटा और गामा फंक्शन बीच में रिलेशन क्या होता है, तो दिस रिलेशन इज गिवन बाय बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बाय डेफिनेशन क्या है, गामा एम की डेफिनेशन क्या है, दैट इज द 0 to इनफाइनाइट e to the power of minus x to the power of m minus 1 dx for m पॉजिटिव, ये गामा m की डेफिनेशन है। अब हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू हमने मान लिया u स्क्वायर, तो क्या शो करेगा dx इज इक्वल टू 2u du। x की लिमिट जब 0 है तो u की लिमिट भी 0 हो जाएगी, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो u इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं है। सो वी हैव गामा m इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस u स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास u टू द पावर ऑफ 2m माइनस 2u, और डी की जगह पे dx की जगह पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2u du। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to इनफाइनाइट
e to the power of u to the power of 2m minus 1 and e to the power of minus u square du. This is equation number 1 for the value of gamma m is equal to. Similarly we can also find gamma n is equal to, and also क्या हो जाएगा, and also we have gamma n is equal to 2 times of 0 to infinite, यहाँ पे u माना, यहाँ पे क्या मान लेंगे v टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1 e टू द पावर ऑफ माइनस v स्क्वायर dv, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो नाउ मल्टीप्लाइंग 1 इंटू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, गामा n इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 इंटू 2 4, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और क्या हो जाएगा u to the power of 2m minus 1 v to the power of 2n minus 1 du dv. अब इस इंटीग्रल को हमें इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारा है u इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, v इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस शोज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, टोटल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब इसमें हम कोई पॉइंट अगर लेते हैं, हमें क्या करना है, इसको चेंज पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके सॉल्व करेंगे इस डबल इंटीग्रल को. तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, लेट u इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, v इज इक्वल टू आर साइन थीटा. तो दिस इम्प्लाइज दैट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाता है, और du dv के जगह पे हो जाएगा r dr d थीटा. और r की जो लिमिट होगी, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू इनफाइनाइट, r वेरीज करेगा, और थीटा वेरीज करेगा कहाँ से, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू इनफाइनाइट वेरी करेगा. तो जो गिवन इंटीग्रल है क्या हो जाएगा, सो गामा n इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू ये पाई बाई 2 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर ऑफ माइनस आर स्क्वायर, और इसकी जगह पे हो जाएगा r टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1, r टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1, और हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस 2m माइनस 1 थीटा साइन 2n माइनस 1 थीटा, और साथ में हो जाएगा r dr d थीटा. तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है सॉल्यूशन हो जाएगा ये 4 टाइम्स ऑफ, सेपरेट कर लेंगे 0 टू पाई बाई 2 वाले को एक साथ थीटा वाले रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास है cos टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 थीटा साइन टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू ये पाई बाई 2 e टू द पावर ऑफ माइनस आर स्क्वायर r टू द पावर ऑफ 2m प्लस 2n माइनस 1 dr. ये बाय द डेफिनेशन अभी हमने बात करी थी गामा फंक्शन की डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ी थी, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज द गिवन बाय 1/2 बीटा ऑफ mn, ये इसकी वैल्यू है. अब इसकी वैल्यू के लिए क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेना है. तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर ऑफ माइनस टी एंड t टू द पावर ऑफ m प्लस n माइनस 1 dt. और जैसे ही हमने इसको माना तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये 2 से 2 इंटू 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा ऑफ mn हो गया. और ये बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन क्या है, 0 टू इनफाइनाइट टू द पावर माइनस x टू द पावर ऑफ m माइनस n. तो यहाँ की जगह m प्लस n है, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ गामा m प्लस n की. तो और हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसकी वैल्यू शो कर रहा है, दिस इज द वैल्यू शो दैट गामा m गामा n. तो हमारा रिलेशन जो हो जाएगा वो प्रूफ हो जाएगा बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू गामा n अपन गामा m प्लस n. तो इस तरीके से हम ये रिलेशन प्रूव कर सकते हैं बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन. अगेन नाउ वी हैव अनदर इम्पोर्टेंट रिजल्ट, दैट इज द, क्या रिजल्ट है, गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू होता है पाई अपान साइन n पाई, जहाँ n की वैल्यू है 0 टू n1 के बीच में लाई करती है, n लाई बिटवीन 0 टू n. तो ये रिलेशन जो होता है गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपान साइन n पाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. तो इसके प्रूफ के लिए क्या करना, दो रिजल्ट की हमें ज़रूरत है.
प्रूफ में क्या चाहिए, सबसे पहले हम जानते हैं वी नो दैट गामा बीटा रिलेशन बिटवीन द बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, तो गामा बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है गामा एन अपन गामा एम प्लस एन. And again we have also on the relation beta function and beta transformation of beta function is that is given by 0 to infinite x to the power of m minus 1 upon 1 plus x to the power of m plus n. ये भी हमने अभी प्रूफ करा था dx. तो ये दो रिलेशन हमारे हैं बीटा फंक्शन के. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द बीटा फंक्शन गामा फंक्शन और दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन का. तो बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या है, 0 टू इन्फाइनाइट एक्स टू द पावर ऑफ एम माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस 1. हम दोनों रिलेशन को अगर हम कंपेयर करें तो दिस इम्प्लाइज दैट गामा एन अपन गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ एम प्लस एन डी एक्स. यहाँ पे एम और एन कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि बीटा एम एन जो होता है बीटा एन एम सिमेट्रिकल इन नेचर होता है. तो जी एम माइनस 1 भी ले सकते हैं, एम माइनस 1 भी ले सकते हैं. हमने यहाँ पे एन माइनस एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन लिया है. तो हम सपोज करेंगे लेट एम प्लस एन इज इक्वल टू हमने 1 मान लिया. दिस इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू 1 माइनस एन. तो यूज़ करेंगे इसको. जब हम यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, गामा 1 माइनस एम की जगह पे 1 माइनस एम हो जाएगा और नीचे हो जाएगा गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स. तो ये क्या मिलेगा, गामा 1 माइनस एन और इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन एन पाई. इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, बाय द थियरम ऑफ रेजिड्यू थियरम से. इसकी वैल्यू हम निकालते हैं रेजिड्यू थियरम से. इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है, जो कॉम्प्लेक्स का टॉपिक है तो उससे हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और दैट इज द गिवन बाय गामा एन माइनस 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई. दिस इज द रिजल्ट फॉर दैट वन. नाउ अगेन वी प्रूव द रिजल्ट्स. Limit of integration 0 to pi by 2 cos to the power of p theta sin to the power of q theta d theta in terms of gamma function, that is gamma p plus 1 by 2 gamma q plus 1 by 2 and upon 2 gamma p plus q plus 2 by 2. This is the value of the integral in terms of gamma function. This is the most important result for calculation, for the calculation point of view. सो दिस वन वी हैव द रिजल्ट. प्रूफ में क्या है, हम पहले से जानते हैं बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू हमारे पास जो रिलेशन था दैट इज द 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 थीटा साइन टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा. इस रिजल्ट को हमने पहले ही प्रूफ करा था. ये होता है और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 थीटा साइन टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा. अभी हमने बीटा और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन निकाला था, दैट इज गिवन बाई गामा एन अपन गामा एम प्लस एन. तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड एज इट रहेगा 0 टू ये पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा कॉस टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 थीटा साइन टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा. अब अगर हम मान लें लेट 2m माइनस 1 इज इक्वल टू पी मान लें एंड 2n माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू मान लें, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलेगी p प्लस 1/2 और यहाँ से मिलेगी n की वैल्यू मिलेगी q प्लस 1/2. तो ना यूजिंग दिस वन, तो यूज़ करेंगे तो हो जाएगा गामा एम की वैल्यू p प्लस 1/2 एन इज इक्वल टू क्यू प्लस 1/2 और ये 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस 2/2. इधर हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर ऑफ p थीटा साइन टू द पावर ऑफ q थीटा डी थीटा. तो इस रिजल्ट से हम कोई भी वैल्यू को इवेलुएट कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से.